Hello student, today I am going to discuss part second of chemical reactions and equations. In this part we are going to discuss about the chemical equations and their balancing. First we will discuss about the chemical equations. Chemical equations are the shorthand representation of or brief representation of a chemical reaction by using chemical symbols and formula of the elements and compounds. So there are two methods. There are so many methods of writing a chemical equation. For example, we can write a chemical equation in the form of a sentence like this. When methane burns in oxygen, it produces carbon dioxide and water. लेकिन ये मेथड बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसका जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है या जो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स और फॉर्मूला को यूज करके जो लिखा जाता है, उस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे यहाँ मीथेन की जगह पर इसका फॉर्मूला हमने यूज़ किया है CH4. ऑक्सीजन की जगह पर इसका फॉर्मूला हमने O2 लिखा है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा है. तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उस फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. Writing the chemical equation. Chemical equation can be written in terms of word as well as in terms of symbols and formula. When equation is written in the form of word, then it is called word equation, and if it is written in the form of symbols and formula, then it is known as a skeletal equation. For example, when we write an equation in terms of word, for example, the reaction between zinc and dilute sulfuric acid can be written as in terms of word. Here, zinc reacts with sulfuric acid, then zinc sulfate and hydrogen is formed. But this reaction is written in the form of word, that's why it is known as a word equation. In second equation, we have replaced the word with their symbol and formula. For example, zinc is replaced by Zn. Sulfuric acid, we have written the formula of sulfuric acid S2SO4. Here we have written the formula of zinc sulfate ZnSO4, and here we written the formula of hydrogen, that is S2. So when we write an equation by using the symbol and formula, then that equation is called a chemical equation or a skeletal equation. The chemical equation can be written by using the following steps. First, we write the word equation. First of all, write the names of the elements and compounds in the reactant and product. Put an arrow between the reactant. So we write an arrow between the reactant and product, then plus sign between the different reactant and products. For example, here magnesium, when reacts with oxygen, magnesium oxide is formed. We have written magnesium and oxygen on the left hand side of the arrow, and we have put a plus sign between the magnesium and oxygen. Here product is written on the right hand side of the arrow, and uh, we have written the name of the product, magnesium oxide. So when magnesium reacts with oxygen, magnesium oxide is formed. So first method of writing a chemical equation is to write the word equation. So this one is the word equation. Second is writing skeletal equation. In this step, names are replaced by the symbols and formula of the elements and compound. This is called the skeletal equation, which may or may not be balanced. For example, मैग्नीशियम की जगह पर यहाँ हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा है, ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा है, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा है. तो ये एक स्केलेटल इक्वेशन है या एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने सिंबल और फॉर्मूला का यूज किया है.
Now, last step of writing a chemical equation is to balance the chemical equation. Balance means to count the number of atoms on both sides of the arrow. It should be equal. The number of atoms should be equal on both sides of this arrow. For example, here two magnesium atoms are present. Here also two magnesium atoms are present. Here two atoms of oxygen are present. And if we multiply this 2 with oxygen, then again here two atom of oxygen are present. So it's a balance equation. So we can write a chemical equation by using these three steps. First we write word equation, then a skeletal equation, then last step is to balance a chemical equation. Next topic is the balancing the chemical equation. Chemical equation in which the mass of the reactant and product is not equal, or number of different atoms in the reactant and products are not equal on both sides of the arrow, then it is called an unbalanced skeletal chemical equation. जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के दो एटम हैं रिएक्टेंट साइड में, और हाइड्रोजन के दो एटम हैं, और इस साइड में प्रोडक्ट के साइड में नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के यहाँ पर तीन एटम है. तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. The balanced chemical equation may be defined as those chemical equation in which the mass of the reactants is equal to the mass of the product. रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, या नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल. यानी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हैं तो उस इक्वेशन को हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. In other words, the process of making the number of different types of atoms equal on both sides of the equation is called balancing of equation. यानी एक ऐसा मेथड जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं, तो ये एक इसको हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं. For balancing of equation, commonly two methods are used. One is the hit and trial method, and other is a partial equation method. We will study about the partial equation method in higher classes. So here we are going to discuss only the hit and trial method of balancing. Here the coefficient before the formula or symbols of the reactant and products are adjusted in order to make the number of atoms equal on both sides. कोफिशिएंट का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के आगे जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं. तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि एरो के दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो जाए, और ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है. फर्स्ट इक्वेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक एटम है, इधर एल्यूमिनियम के दो एटम हैं, इधर ऑक्सीजन के दो एटम हैं, इधर ऑक्सीजन के तीन एटम हैं. यानी एरो के दोनों साइड में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम अनबैलेंस इक्वेशन कहेंगे. जबकि दूसरी इक्वेशन में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल हैं, इसलिए इसको हम बैलेंसिंग इक्वेशन कहेंगे. अगर हम रिएक्टेंट की साइड में देखें तो इधर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और इधर भी प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है. इधर एल्यूमिनियम के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन के अगर हम देखें तो 3 2 6 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं. प्रोडक्ट की साइड में 2 इंटू 2 यानी एल्यूमिनियम के 4 एटम्स इधर भी प्रेजेंट हैं, और अगर ऑक्सीजन के एटम्स देखें तो 2 3 6 एटम्स ऑक्सीजन के प्रोडक्ट की साइड में भी है. तो एल्यूमिनियम 4 on reactant side, and on towards the product side they are also 4, and oxygen 6 towards the
reactant side, and on product side they are also 6. So this one is a balance equation because number of atoms on both sides of the arrow are equal. Now, steps of balancing a chemical equation. First step is write the skeletal equation by putting the symbols and formula of the elements and compounds. सबसे पहले हम skeletal equation लिखते हैं. Second, count the number of atoms of different element in the reactant and product side. उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड उनको काउंट करेंगे. देन सेलेक्ट द लार्जेस्ट फार्मूला. रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में जो भी लार्जेस्ट फार्मूला है उसको सेलेक्ट करेंगे. नाउ फर्स्टली बैलेंस द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम. इस लार्जेस्ट फार्मूला में उस एटम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं. Then balance the different atoms by multiplying the smallest number to make them equal. Next is do not alter the subscript of the molecular formula. कोई भी फॉर्मूला है सपोज Al2O3, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं. हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे. बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ इसमें 2 या 3 या किसी भी नंबर से इसमें हम मल्टीप्लाई करें. डू नॉट चेंज द फॉर्मूला. जो फॉर्मूला है इसको चेंज नहीं किया जाएगा. Seventh is check the balance equation by counting the different atoms in both sides. The mass and number of atoms should be equal in both sides. इक्वेशन बैलेंस कैसे की जाती है इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कहीं पर H2 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा. इसका मतलब है 2 एटम्स. लेकिन अगर 2H2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 4 एटम्स. क्योंकि अगर हम यहाँ 2 से इस H2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाएंगे. इसी तरह से किसी भी फॉर्मूला में सपोज H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं. लेकिन अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरे में मल्टीप्लाई होता है. यानी अब 2 इंटू 2 हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाएंगे. 2 इंटू 1 यानी सल्फर के 2 एटम्स हो जाएंगे और 2 इंटू 4 ऑक्सीजन के 8 एटम्स हो जाएंगे. तो जब भी हम इस कोफिशिएंट को चेंज करते हैं या कोई भी नंबर यहाँ लिखते हैं तो ये पूरे फॉर्मूला में जो एटम्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उनसे मल्टीप्लाई होता है. Now we'll discuss example 1. Write the chemical equation for the reaction of aluminium metal with dilute hydrochloric acid to form the aluminium chloride and hydrogen gas. इसको भी हम 3 स्टेप में ही कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखी जाएगी. वर्ड इक्वेशन में aluminium reacts with hydrogen chloride, aluminum chloride and hydrogen gas is formed. Second step is to write the skeletal equation. We have replaced the word with their symbol and formula. We have write Al for aluminium. We have written HCl, a formula for hydrochloric acid, and AlCl3 is the formula of aluminium chloride, and for hydrogen we have written H2. Third step, count the different number of atoms in reactant and products and choose the largest molecule having large number of atoms. Here in this case the largest molecule is the
Cl3। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि केमिकल इक्वेशंस को हम 3 स्टेप्स में लिख सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वर्ड इक्वेशन, सेकेंड स्टेप to write a skeletal equation and third step is to balance a chemical equation। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप एक वर्ड इक्वेशन लिखा है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। सेकेंड स्टेप है जिसमें हम एक स्केलेटल फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें वर्ड इक्वेशन को एक केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह पर हमने इसका सिंबल Al लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह इसका फॉर्मूला HCl लिखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है AlCl3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब ये रिएक्टेंट्स हैं और एरो के दूसरे साइड पर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनको हम यहाँ लिख लेंगे, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सेम एटम्स प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होंगे, तो एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम का एक एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एक एटम प्रेजेंट है और क्लोरीन का भी एक एटम प्रेजेंट है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम का एक एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और क्लोरीन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लार्जेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं AlCl3 और इसमें क्लोरीन को देखते हैं। लार्जेस्ट फॉर्मूला में जो जिस एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उसको हम देखते हैं क्लोरीन। तो इधर 3 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं, इधर 1 है, तो इसको हम 3 से अगर इस साइड में मल्टीप्लाई करें, इस फॉर्मूला में 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्लोरीन के एटम्स इधर 3 हो जाएंगे और इस साइड में भी 3 हो जाएंगे, ये इक्वल हो गए। लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के एटम्स भी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होते हैं और इधर 3 पे हैं। अब एल्यूमिनियम यहाँ इक्वल हो गया है, हाइड्रोजन के एटम्स 3 इधर है और 2 प्रोडक्ट की साइड में है, तो इसको इक्वल करने के लिए इस साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हाइड्रोजन के एटम अब 6 हो जाएंगे दोनों तरफ। तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन के एटम्स तो इक्वल हो गए, लेकिन जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम अब 6 हो गए, जबकि इधर क्लोरीन के एटम 3 है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम 6 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन के एटम 6 हो जाएंगे। अब इधर एल्यूमिनियम के एटम्स बढ़ गए, 2 हो गए, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एल्यूमिनियम के एटम्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम कंपेयर करें तो रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 6 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 6 हैं, क्लोरीन के 6 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन के 6 एटम्स। तो जो फाइनल एक बैलेंस इक्वेशन होगी वो 2Al प्लस 2 इंटू 3 6HCl टू AlCl3 प्लस 3S2। ये एक बैलेंस इक्वेशन है क्योंकि
एरो के दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल। अब हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वर्ड इक्वेशन दी हुई है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सेकेंड स्टेप है, हम केमिकल या स्केलेटल इक्वेशन हम लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है। जब भी हम किसी गैस को लिखते हैं तो हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखते हैं। जैसे अगर हम N2 लिखें, नाइट्रोजन गैस लिखेंगे तो हम N2 लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे तो O2 लिखेंगे, हाइड्रोजन अगर गैस लिखेंगे तो H2 लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे तो F2 लिखेंगे, क्लोरीन अगर लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे। इनको हम NOH एटॉमिक फॉर्म में ना लिखकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो जहाँ भी अगर ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो वहाँ पर O2 लिखा जाएगा। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो Al2O3, इस कंपाउंड का फॉर्मूला Al2O3 होगा। तो ये फर्स्ट वर्ड इक्वेशन है। सेकंड केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड है और इधर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स देखें अगर रिएक्टेंट साइड में, तो इधर एल्यूमिनियम है और इधर ऑक्सीजन है, इधर एल्यूमिनियम है और इधर ऑक्सीजन है। तो दोनों साइड में जो एटम्स हैं वो सेम रहेंगे। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं। प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम के एटम्स अगर यहाँ देखें आप 2 हैं और ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर 3 हैं। क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम अगर ऑक्सीजन को देखें तो इधर 3 है, इधर 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। हमने ऑक्सीजन से पहले 3 लिख दिया है, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन 6 हो जाते हैं। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, लेकिन जब हम यहाँ 2 लिखते हैं तो एल्यूमिनियम के एटम्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, इधर 4 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स 4 हो जाते हैं। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हो गए, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 6 एटम हैं। एक और एग्जांपल में हम देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर हम स्केलेटल फॉर्मूला लिखेंगे। नाइट्रोजन का जो सिंबल होगा वो N2 होगा, हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा H2 होगा और अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH3 होगा। ये रिएक्टेंट साइड है और इस साइड में प्रोडक्ट प्रेजेंट है। रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस साइड में प्रेजेंट हैं और इधर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। यानी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में सिमिलर नहीं है, इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं।
इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 6 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, और इसको अगर 3 से करें तो इधर भी 6 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में 2 से इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इंक्रीज होकर 2 हो जाते हैं, और इधर ऑलरेडी 2 हैं। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 6 हैं। कुछ और इक्वेशंस को हम बैलेंस करके देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर आयरन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट हैं, और प्रोडक्ट साइड में भी आयरन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर हम रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में आयरन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं और एल्यूमिनियम का 1 एटम प्रेजेंट है। प्रोडक्ट साइड में आयरन का 1 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं और एल्यूमिनियम के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले आयरन के एटम्स को अगर हम देखें, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आयरन के एटम्स इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम के एटम्स इधर 1 है और इधर 2 हैं, तो इस साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो एल्यूमिनियम के एटम्स भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड में इक्वल हैं, 3 और 3। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हो जाती है, Fe2O3 2Al 2Fe Al2O3, क्योंकि दोनों साइड में रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं आयरन के, और प्रोडक्ट साइड में भी आयरन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के 3 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में भी 3 है, और रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में रिएक्टेंट साइड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। इधर 3 कार्बन are present. On product side, single carbon is present. रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 8 एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 2 and 1 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले कार्बन के एटम्स को देखते हैं। इधर 3 एटम्स हैं और इधर 1 है, तो इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो ऑक्सीजन के एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं, 3 2 जा 6 and 1 7। तो टोटल जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 7 हो गए। हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में 8 हैं और प्रोडक्ट साइड में 4 हैं। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड में हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल हो जाते हैं, इधर भी 8 हो जाएंगे, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो जाते हैं। तो 3 2 जा 6 और 4, टोटल यहाँ जो एटम्स हैं वो 10 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, और रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन के 3 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 3 हैं। हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 8 हैं,
ऑक्सीजन के 10 एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 10 है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई।